मेंटल हेल्थ कंडीशंस को भी इंक्लूड कर लिया गया है इंश्योरेंस पॉलिसीज में. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन चेक विथ योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर कि अब ये है कि नहीं है, क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं है. इन सम इंश्योरेंसेज ऑब्वियसली सब्सटेंस यूज को नहीं किसी किसी में लिया गया है कि इट इज ड्यू टू अल्कोहल और अदर सब्सटेंस यूज तो हमें नहीं मानेंगे, और मेंटल रिटार्डेशन जो कि बचपन से उसको नहीं मानेंगे. बाकी डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, देयर आर इंक्लूडेड इन दी मेडिकल इंश्योरेंस Okay. कवर. दे विल कंप्लेन Okay. ऑफ मल्टीपल बॉडी एक्स, ये भी दर्द है, वो भी दर्द है, वो भी दर्द है, कुछ रिपोर्ट में नहीं आएगा, एंड दैट इज अल्टीमेटली डिप्रेशन. तो Oh. उनके में प्रेजेंटेशन अलग होती है. दे Okay. हैव मोस्टली बॉडी एक्स, लेथार्जिक, एंड आल्सो दे विल टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स कि अब जी के क्या ही फायदा, भगवान उठा ही ले जाते हैं, अब तो कुछ करने को ही नहीं है, कोई हाँ. समझता ही नहीं है, कोई हाँ. किससे ही बात करें, मेरे रहने ना रहने से क्या ही फर्क पड़ता है. दिस हाँ. हैपेंस बिकॉज यस दे आर मेड टू फील लाइक दैट. Yeah. बात नहीं हो रही है, कनेक्शंस नहीं हो रहे हैं, हफ्ते-हफ्ते में फ़ोन नहीं आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन नहीं उठ रहा है क्योंकि हम बिज़ी हैं किसी मीटिंग में, हम कॉल बैक करना हाँ. भूल जा रहे हैं बिकॉज़ हम अपनी लाइफ़ में ही बहुत बिज़ी हो गए हैं. सिर्फ़ चीज़ों में जो-जो अच्छाइयाँ हो रही हैं उसको खोजने की कोशिश करो. स्टॉप पिकिंग अप नेगेटिव थिंग्स कि ये खराब हुआ, ये खराब है, उसमें ये खराबी, आज मेरे साथ ये गंदा हुआ. चीज़ें लाइफ़ में क्या अच्छी हैं Yeah. उसके बारे में सोचो. True. हैव अ Hmm. पॉजिटिव आउटलुक दैट Yeah. डेफिनिटली अफेक्ट्स अ लॉट फॉर योर मेंटल वेलनेस. तो Okay. कुछ भी आपके Amazing. साथ खराब होता है, किसी पे कोई बुराई लग रही है, ये बंदा खराब है, तो उसकी अच्छाइयाँ सोचने की कोशिश करो. Welcome to Being Curious with Yash. Welcome, welcome to Being Curious with Yash, Dr. Upasana Rai. She's a very well-known psychiatrist. She has treated a lot of patients and has like years of experience. So welcome, doctor. Thank you so much, Yash. Thank you. So let's talk about your journey. That why did you study medicine, and why did you choose psychiatry in general? So, as you've introduced, my name is Dr. Upasana. I'm basically from Varanasi, and I'm a consultant psychiatrist over here. So, Okay. when I talk about my interest, I've actually had passion for medicine long back when I was class in I think eighth or ninth. And my father is also a doctor, so I've seen how the life of doctors is and how respectable the job was. And I was also introduced to many other doctors in fields, super specialty at that age, which had led me to that source of, had given me that source of inspiration, and I used to admire them a lot. This is what had brought me to field of medicine. Although I had passion for maths long back, and I used to love maths, doing maths. So I also remember there was this career counseling session going on in school while I was in class 10th or so, एंड वेयर आई स्टूड अप एंड आस्क्ड कि मुझे पढ़ना मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे बनना डॉक्टर है, तो मुझे क्या करना Okay. चाहिए? क्योंकि मुझे पढ़ना मैथ सच में बहुत अच्छा लगता था, बट देन आई वाज एट दैट टाइनी एज, आई हैड सीन डॉक्टर्स, आई हैड सीन हाउ देयर वर्क लाइफ इज एंड हाउ रिस्पेक्टेबल द जॉब इज, सो आई Yeah. वांटेड टू बिकम. So this is what I chose, medical medicine. I started preparing, and while I was in class 12th in the same year, I cleared NEET, and I went to Manipur. That was a government medical college, northeast, so it was very far. My parents were hesitant, but because I had this passion, I also didn't want to take any drop, so I went there. The life was difficult there. I had to face a lot of language issues, cultural issues, and I was also vegetarian, so there was a problem in that too. But then things went on. Later, I adjusted to the place and also could speak that language fluently. So this is how my MBBS went. And then talking about how why did I take MD psychiatry? Because I had quite I was always very interested in knowing people, understanding people, talking to them, and trying to understand their emotions. And this is why I think this was a major reason. And I after doing my MBBS, I also practiced in neurology. So there I used to find many patients of psychiatry, and this also made me very curious to know this branch. I asked to other Okay. doctors as well, how's this branch, and people told me that this is a very upcoming field, and so this is why I took psychiatry, and I did it from a very prestigious institute, Central Institute of Psychiatry, Ranchi. It is like 110 years old, and Okay. it is more than 10. It was established in 1918 by English. So this is how such a prestigious institute I have been to. Okay. Yeah. Nice, nice. So, like talking about your father, like what did he practice like in medicine? He's a general physician. So Okay, okay. yeah. So you must be visiting his clinic a lot when you were Yeah, kid. this exactly.
and this is his Okay. clinic only where I'm sitting. So the day I passed, I had a already settled clinic where I could sit, and now he proudly has given me his chair as well. So sometimes he says that you have taken my space, but then he's very proud about it. So I'm sharing the Yeah, same thing yeah, with him. definitely should be. And like talking about psychiatry, like your interest in psychiatry. So can you just shed light ki, when you were studying, you said ki you were studying neurology and you got interest in psychiatry. So like what issues in psychiatry did you actually interest you? Like talking to people and in general, so that you had a hunch ki, okay, I want to explore these fields more in general because it is helping everyone. Because I think Mm-hmm. at the end of the day, you doctors are not that rich. Okay, they earn money, but I think it's a service kind of job, whatever you, because I have seen like a lot of my friends are doctors and ultimately they say it's a very hard working job, and the kind of work that we put in, we don't think we get that kind of money, even though they are well to do in society. So Yeah. want to know like what piqued your interest in psychiatry? See, when we talk about different other branches, so it's more about the people come, they come up with the symptoms and they get the treatment. But Yeah, here, if you just they tell the symptoms and you just prescribe the medicines, this won't help. You need to talk to them. You need to connect to them. You need to make them so comfortable that they just open up. There yeah, are also things like they come up with me and they tell me, they share with me, which they have never spoken to anyone else, not even their close family members or parents or anyone. So true, if true. you talk about that issue, if you try to deal with that issue, like half of the problem is already solved. People come and say, मैम बात करके ही जैसे लग रहा है चीजें हल्की हो गई, एटलीस्ट किसी को बोल पाया. तो ये इतनी Hmm. ऐसी फील्ड है कि मेडिकल में तो टाइम ही नहीं है डॉक्टर्स के पास बात करने का. सो देयर वाज Yeah. आल्सो रिसर्च विच वाज डन जिसमें देखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन लिखने में और डॉक्टर पेशेंट आ रहा है और इंडियन डॉक्टर्स की जिसमें डॉक्टर पेशेंट रेशियो की बात करें तो कुछ सेकंड्स में ही डॉक्टर्स को इंटरप्ट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये हो रहा है क्या, वो पूरी बात बोल ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द Hmm. डॉक्टर पेशेंट रेशियो विच वी हैव इन Hmm. दिस कंट्री. Yeah. और इस ब्रांच में सुनने की बहुत जरूरत है, इतना पेशेंस रखना. सो True, true. आई हैड दैट मच ऑफ पेशेंस एंड आई जस्ट लव्ड इट. मैं एक मैं वही कह रही हूँ न्यूरोलॉजी वाली पोस्टिंग में थी, उसमें बात करने का ऐसा भी नहीं साइकेट्री के पेशेंट्स थे, बट आई वुड जस्ट टेक राउंड एंड आई वुड जस्ट आस्क देम हाउ आर यू. So Okay. how are you? Did you sleep last night? So how is it? So the guardians as well. Ki how are you feeling? Because see, if anyone's relative is in hospital, also he or she must be going through a lot. So we just True. speak to them, just ask them how are they. So it makes a lot of difference. So I Yeah. felt like कि ठीक है सर आ रहे हैं neurologist आ रहे हैं वो अपने राउंड ले रहे हैं, but I also need to talk to them. That makes Yeah. a lot of difference. So जो True. साइकेट्री वाले पेशेंट आते उनसे बात करती थी तो बहुत अंतर होता था. They would just मतलब ट्रीटमेंट किसी और ने किया बट दे वुड आल्सो रिमेंबर मी कि मैम आपसे बात करके चीजें बहुत एक कॉन्फिडेंस आ गया, चीजों को एक्सप्लेन कर पाना, बात कर पाना. सो आई देन अंडरस्टूड कि भाई चीजें बहुत कुछ है बट लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए बोलने के लिए एक जगह की जरूरत है. एंड दिस इज द मेजर Yeah. रीजन दैट पीपल आर लैंडिंग अप इनटू साइकेट्रिक इलनेसेस, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है बिकॉज वी हैव सो मच यू नो सोशल मीडिया में इतने चले गए हैं, उसमें कनेक्ट हो गए हैं कि वी डोंट हैव फ्रेंड्स इन फिजिकल इन पर्सन टू एक्सप्रेस. तो ये True. True. चीजें जो है ना अपने आप में आदमी रखे रखे कहीं ना कहीं वो अंदर से खटक रही है. बस इसी तरीके से आई जस्ट स्टार्टेड एंड देन आई हैव नेवर रिग्रेटेड टेकिंग दिस ब्रांच. Okay. Amazing. Yeah. And the social media thing is so correct. Like, I see a lot of people who are posting online and all, and when I get to know about them, they are very depressed and they Yeah, have a lot of anxiety and all. And I'm seeing, Arid, exactly. they are they are like they have such a good life on social media. Doesn't look like. So Hmm. yeah, this contrast is always there. That is just a faulty coping mechanism, I can say. It's Yeah. just they're trying to cope up with that thing there, but Yeah. yeah. Yeah, true. So let's start with a lot of questions that we have Sure, prepared sure. for our audience. So first thing I want to just ask, like, what does this negative mental health look like when someone comes to you? So how do you judge that his mental health is negative? Because mental health being very not good and actually someone being like momentarily sad is actually very different. It's a So different like, thing. yeah, it's a different thing. So how do you actually treat this? Because I had this curious thing in my mind ki, Yeah, yeah. how do doctors actually think about these things?
See, if we talk about just our mood has this graph. It has to go up, it has to go down. That is very normal. If you Yeah. are in a situation where you find happiness, you'll be happy. If there is something which just happens which is unexpected and should not have been there, you'll feel sad. This is normal. Yeah. The problem is when it persists for long. Or if we talk about anxiety, see, we might have anxiety when we are about to face any interview or any exam, or if there is an something untoward happening. But then if it persists for long, that becomes a problem. So Okay. Okay. अगर मतलब हम कहें डिप्रेशन की बात करें, so the mood remains low most of the day. Most of the day you just feel low, you feel sad, you don't seem as cheerful as you used to. You start losing interest in all the activities that used to once give you pleasure. The Okay. tastiest food you just don't find interest in. You Okay. used to love to talk to people, now you just don't want to face them. If you see someone coming, you just divert your way. You don't want to make Okay. eye contact. You start losing Okay. all the confidence, and you have disturbed sleep. You don't feel hungry, you lose your appetite, you Hmm. lose your functionality. Most important, you Yeah. just are not able to function in the way you used to, be it your Yeah. academic performance, be it your job or anything. So there is a set criteria for depression. We say like agar it persists for 14 days. 14 days. If we talk about other things, then there are different set of criteria. But the most important thing is that it should be persistent and pervasive. That is Okay. happening most of the day, and Okay. it should affect your functionality. कि इतना हो Okay. गया है कि अब मैं अपना रूटीन काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, कि अब मैं जैसा पहले कर रहा था वो कर ही नहीं पा रहा. दैट देन बिकम्स अ डिसऑर्डर. अदरवाइज चीजें ऊपर Okay. नीचे होना, दैट कैन हैपन एनी डे. Okay, that's like a really good answer. I think like this is like very simple and crisp answer that I think I would to definitely keep in mind. Next thing I want to know, like, so what can be the root causes of these mental health issues? I think there must be a lot of root causes, but what do you think you are practicing and you must be noticing that there are 5 6 causes that are very prevalent in adults. So we Yeah, yeah. can firstly we'll just talk about adults. Yeah, Okay. So first we'll talk about some basic causes. yeah, We take it as a model which we call as biopsychosocial model. So okay, biological factors also play a role, psychological factors also play a role, and then there are some social environmental factors. So okay, biological causes like genetic causes. So there are reports done like family studies, twin studies, where they find that किसी व्यक्ति की अगर फैमिली में कोई साइकेट्रिक इलनेस है, then they are at higher prevalence than the general population. So एक ये फैक्टर हो गया. Then we talk about early age. So, and also in biological factors, there are role of chemicals, neurotransmitters, definitely serotonin, dopamine, endorphins, yeah, norepinephrine. So there are many chemicals that also play a role. उसके अलावा how you were brought up when you were a child, how was your home atmosphere, how were you treated, how was your school life, were you bullied, were you not, were you made comfortable to express your emotions, were you allowed to speak up, were your needs satisfied on time or not. So how was especially the mother child relationship at that age. So this, then how were your parents relationship. Did you like, there are cases young age में anxiety depression and they've seen their parents fighting, they have seen a lot of domestic violence, they have seen substance use in the family. तो ये सारी hmm, चीजें, this all comes there. And then there are psychological factors. सबकी अपनी अपनी personalities होती हैं, सबका अपने अपने yeah, vulnerability होती है. जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती, सब आदमी का threshold अलग अलग होता है. कोई कोई बहुत स्ट्रेस झेल सकता है, कोई कोई नहीं झेल सकता. कोई बहुत एंग्शियस अवॉइडेंट टाइप ऑफ होता है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट होता है. So there are psychological factors also, and then social, definitely the environmental factors, whatever stresses that comes to our life. तो ये एक जनरल चीजें हो गई. उसके अलावा if we talk about now, if you're talking about now, youth, youngsters में क्यों इतना हो रहा है, hmm, because अभी मेरे पास जो patients आ रहे हैं, they are mostly 20 to 35 years of age. ये होते okay, हैं जो ये, very because they are very open, yeah, they are very open. They search for psychiatrists and they come up, and they mostly come up alone. They don't bring about their families because they think that they think, and also that happens that they say कि वो नहीं समझेंगे, पेरेंट्स नहीं समझते. तो वो hmm, एज ज्यादा आ रही है. क्यों ऐसा हो रहा है, ये केसेस ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं? इफ यू टॉक अबाउट, देयर आर reasons behind it. We can call it like
पहला तो वर्क प्रेशर बहुत बढ़ रहा है लोगों के ऊपर। True. 30 में सबको कमाने का है कि सब कमाएँगे, सब इतना करना है, एक-एक सबका अपना एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतना कुछ कर लेना है। True. True. उसके बाद सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं कि इतना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। True. डेडलाइन्स बहुत हैं कि मुझे ये सब मीट करना है। अपना True. सबका एक अपना एक सेट टारगेट है, सबको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो ये सब चीज़ें अलग हो गई हैं, सबको अपने पैर पे खड़े होना है। उस एज में शायद अलग था कि एक पेरेंट्स का बना हुआ घर था, सब चीज़ें नहीं है। अभी हम इस एज में हमें पेरेंट्स से पैसा लेना नहीं अच्छा लगता। हमें सब कुछ अपने दम पे करना है। तो एक जो एक हाँ. एक रेस्टलेसनेस है चीज़ों का, एक वर्क का प्रेशर है, एक अपना एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है, सबको मीट करना। एंड True. देन अब हम बोल भी नहीं पाते। वी वांट टू बी एज़ कॉन्फिडेंट एज़ इट कैन बी इन फ्रंट ऑफ अदर्स। हम सबसे सोशल मीडिया में चले गए, हमारे पास अपने अच्छे दोस्त नहीं हैं बोलने के लिए, तो एक आइसोलेशन भी है कहीं न कहीं, जो कि एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो वो भी एक रीज़न है। ऑल्सो यूथ बहुत सब्सटेंस अब्यूज़ में चला गया है, अल्कोहल, वीड, टोबैको, ये सब भी बहुत अब बढ़ गया है। Which could be like they could have just started just out of curiosity, or they have started to overcome that anxiety, and this has also Yeah. made them vulnerable to True. True. many kind of mental illness. तो Yeah. ये सारे reasons हैं जिस वजह से Yeah. अभी psychiatric illness बढ़ते जा रही है. So, like a lot of reasons you actually told, but a couple of reasons I want to touch upon. One is you say कि in early childhood you see domestic violence in your homes or in people's homes. So I want to know like your experience in dealing with these kind of cases, because I think in India like hitting children and all is perfectly fine. Like I mean most societies it is acceptable कि हाँ मार दिया तो क्या हुआ, मतलब it is part of the job. ये but does it really affect a child's mental health? Because अब 5 साल की उम्र में किसी बच्चे को मार दिया, 8 साल की उम्र में, अब बेचारे अब उस टाइम तो किसी से बात नहीं कर सकता है। अब 10 साल बाद उसको अफेक्ट कर रहा है तो अब क्या ही, how will he get to know? And next thing I want to know, like this thing in adults, you said कि there is like lot of isolation. But like in like the age of social media and all, like everyone is connected. I can message anyone. I can message Bill Gates, or I can message my friend, or I can message a doctor. Why do you think there is like so much isolation? Like I think a previous generation, if they would have given this argument that there is a lot of isolation, one would have gotten it. But this generation is so much more connected, like 10 times more connected. Still, we are giving this isolation wala argument. So I wanted to know about these two things. Okay. So first we'll deal with the first question कि बच्चों में जो ये मैं मतलब बात की थी डोमेस्टिक वायलेंस की जो पेरेंट्स वाला, Yeah. और ये भी एक इशू है जो आप बता रहे हो. Yeah. तो इसके रीजंस मतलब बढ़ते ही आ रहे हैं. सही बात है, हमें वो सब चीजें अभी मैटर नहीं करती थी, बट अब बच्चों को ये फर्क पड़ जा रहा है. अब जैसे Okay. रिसेंट अभी एक मेरे पास एक बच्चा आया था, आई थिंक 10-11 इयर्स ऑफ एज, दैट्स इट. कंप्लेन थी पेरेंट्स की कि मैम इसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, ये खुद से कुछ बोलना ही नहीं चाहता है, ये शॉप पे जाता है अपने छोटे भाई बहन को बोलता है कि तुम बताओ मांगो क्या मांगना है, तुम बोलो ये चाहिए. मतलब उतना भी अच्छा. कॉन्फिडेंस नहीं है. छोटे बच्चे को Okay. बोलेगा तुम बोलो, वो नहीं बोलना चाहता. बहुत सुस्त हो Okay. गया है, बहुत डरा सा, मतलब डरा क्या, मतलब बहुत अंडर कॉन्फिडेंस सा हो गया है. ये Yeah. कंप्लेन थी. फिर मैंने कहा ठीक है, बट मैं बच्चे से बात की, वो वैसे भी थोड़ा-सा काँप रहा था, डरा सा था. तो वो बोल रही मैम जब से उसको बताया है कि आज आप साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाना है, वो सुबह से और डरा हुआ है कि क्या Okay. होगा, क्या होगा? और कुछ उनको बच्चे बाकी बच्चे थे वो डरा दिए कि वो लोग तो शॉक देते हैं, तो करंट देते हैं तो वो और डरा हुआ है. मैंने कहा कोई Yeah. बात नहीं, ठीक है. मैंने उसको काम डाउन किया, चलो ठीक है ये वो. हाँ. फिर मैंने उनसे परमिशन लिया पेरेंट्स से कि इफ आई कुड जस्ट हैव टाइम विद द किड अलोन एंड देन वी कुड स्पीक अप मोर कंफर्टेबली. तो उन्होंने बोला या श्योर. बच्चे से अलग से बात किया, एंड यू वोंट बिलीव कि वो कह रहे थे कि मेरे से डरा हुआ है ये वो, बट इन 15 मिनट्स ही वाज वेरी ओपन. सब कुछ बताया Okay. उसने. उसने Okay. बताया कि उसके पेरेंट्स में आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, Okay. बहुत ज़्यादा होता है. मैं सुना हूँ बात करते हुए, मारपीट तक हो जाती है. उसके Okay. बाद से ही मैं अपना कुछ बताने मेरे को डर लगने लगता है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कुछ बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत है, तो उसमें भी दे स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट इन ईच अदर कि तुमने खाना नहीं सही से खिलाया होगा, तुम ही बाहर से बाहर खिला देते हो, तो मेरी भी कुछ दिक्कत होती है, तो लड़ाई आपस में और हो जाती है. तो मैं क्या ही बोलूँ? मैंने कहा ठीक है. हाँ. अब हाँ. बिकॉज़ ऑफ दैट ही स्टॉप्ड स्पीकिंग, हाँ. और ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगा उसके स्कूल में, एंड बिकॉज़ ऑफ Okay. दैट ही वाज़ बुलीड इन द स्कूल. बहुत Okay. वियर्ड नेम्स, मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि अभी 10 10 11 साल के बच्चे आपस में हाँ. ऐसे शब्द यूज़ करते होंगे और इस तरीके से
एक दूसरे को कर रहे हाँ हैं, बट दिस इज हैपनिंग। तो बहुत या गंदे शब्द, बहुत गलत तरीके से बच्चे को वो करना, ये वो चीजें होने लगी। तो क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होता है, आप घर पे जैसे हो वो आपका बिहेवियर वहाँ पे भी होगा। जब बच्चा घर पे ही अपने कॉन्फिडेंट होके बोल नहीं पा रहा पेरेंट्स से, तो वो स्कूल में जाके क्या ही बोलेगा। तो वो उधर से ट्रू भी अफेक्ट होने लगा। और ट्रू जो माँ बाप का गुस्सा था वो कहीं ना कहीं उस पर भी निकलने लगता था। तो ऑब्वियसली ही वाज आल्सो बीटन अप, एंड ही वुड नॉट नो द व्हाई वाज इट डन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, एंड ही स्टार्टेड ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर ऑल द फाइट्स बिटवीन द पेरेंट्स। तो वो स्कूल में या होने लगा, ही वाज बुलीड, एंड देयर वाज आल्सो एन इंसिडेंट वेयर ही वाज फिजिकली अब्यूज्ड। तो ये चीजें मतलब एक 10 से 11 साल का बच्चा बाय अदर क्लासमेट्स। तो ओके अब वो बच्चा क्या ही बोलेगा, उसका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, बिकॉज दैट इज द एज वेयर अ चाइल्ड डेवलप्स हिज ओन आइडेंटिटी। He ट्रू develops his own identity. Who am I? What am I for? And he could not, because he could not speak up. He was not identified. His needs were not identified on time. Also, he was ट्रू ashamed. He was bullied. So उसकी तो आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाई, उसके पास कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा कोई अननोन आदमी से बात करने का। अब उसे लगता है कि मैं सही किसी बात से बात करता हूँ, मैं हाँ आई कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग मुझे उसी नजर से देख रहे हैं, जिस हाँ नजर से उसके क्लासमेट्स उसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि योर हाँ होम एंड योर स्कूल आर द बेसिक प्लेस जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये हम्म ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि मतलब या क्या ही बोलें। एंड द पेरेंट्स दे कुड नॉट, मतलब आई ट्राइड टू मेक देम अंडरस्टैंड इट, बट दे डिड, आई डोंट नो हाउ मच डिड दे अंडरस्टूड इट। दे वर लॉस्ट टू फॉलो, दे डिड नॉट कम अप। वो उसमें भी आई मैं बोल रही हूँ कि चलिए ठीक है, ऐसी-ऐसी हाँ चीज़ें हैं। तो हाँ अब वो मतलब तुरंत प्रॉब्लम बच्चे बेचारे को, बच्चे में नहीं है आप में हाँ, है हाँ अब वो तुरंत बच्चे को बोल रहे हैं, मैं तुमसे इतने दिन से पूछ रही, तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैंने कहा फिर हाँ आप देखो क्या कर रहे हो। बच्चे से हाँ कभी क्यों, क्या, कैसे नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो बच्चे को लगेगा उसे इंट्रोगेट किया जा रहा है, उसको कटघरे में रखा जा रहा है। सही तो बात ये और अनकंफर्टेबल कर देगा उसको। आपको ट्रू आप अब आप सोचो कि व्हाट वाज़ द फॉल्ट इन यू, कि बच्चा वो कंफर्टेबल नहीं बोल पाया और आप कह रहे हो मुझसे दिन भर से डर रहा था, मुझसे कैसे बोल दिया, मैं इतनी अनजान थी। As such, he हाँ was bullied, he was physically abused, and he could not share with the parents. That's so surprising, ट्रू and they were so ashamed, maybe, or maybe not. I don't know, but they did not come up again. मैंने दवाई नहीं दी, कुछ भी नहीं, because the therapy was needed with the parents. They needed counseling, या and this ट्रू is this is what is happening. So ट्रू मार पीट वो अलग चीज है। देखो, डांटना बच्चे को वो बहुत नॉर्मल है, बट हाँ बच्चे को बताना होता है रीजन कि क्यों हुआ। If he knows हाँ why was I beaten or something, or हाँ जो भी data scolded, then he हाँ would know what he should not do. But if हम्म we are just diverting our anger or हम्म, displacing our anger on the child, because सब लोग stressed है, तो वही कह रही हूँ ना, बस गुस्सा निकल रहा है और बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है, तो वो तो फिर कुछ भी करने में डरेगा। तो हम्म, एक तरीका होता है चीज़ों को, पनिशमेंट सही टाइम पे, रिवॉर्ड सही टाइम पे, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन करेक्ट पेरेंटिंग। तो ये हम्म, शायद हम मिस कर रहे हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। ट्रू ट्रू एंड द अदर क्वेश्चन अबाउट सोशल मीडिया एंड आइसोलेशन, सी, अभी भी मैं कहूँगी यश, अगर अभी हम जैसे जितना भी हम वीडियो कॉल पे या मैसेज पे कनेक्ट हो सकते हैं, शायद हम और बेटर हो सकते हैं अगर हम फेस टू फेस बात करें ना। मैं 100% अपने 100% सेशंस की बात करती हूँ, मुझसे मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं मैम वीडियो कॉल भी अभी नहीं है, नेटवर्क है, फ़ोन से बात कर लो। मैं नहीं हाँ कनेक्ट हो पाती पेशेंट से फ़ोन पे भी, नहीं हो हाँ पाती, ठीक है? मुझे ही सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि मैं शायद अच्छे से समझ नहीं पाई उन्हें। सही बात फ़ोन कॉल तो एकदम ही ऐसा है, मैसेज तो फेशियल आई बहुत ही थिंक मैम अलग है। फेशियल एक्सप्रेशन से यू कैन एग्ज़ैक्टली, रीड द पर्सन मच बेटर एग्ज़ैक्टली। यू सी कि आर इज़ द अदर पर्सन इंटरेस्टेड और नॉट। ठीक हम्म है? तो वो समझ में आता है चीज़ें, आप कनेक्ट हो पाते हो, तो शायद अपने फ्रेंड को और अच्छे से आपका फ्रेंड बन जाए जब आप ऐसे होगे। अब वो हम्म सोशल मैसेज में आप किसी को मैसेज कर दो, यार आई एम फीलिंग लो, हाउ वुड ही या अंडरस्टैंड हाउ लो आर यू फीलिंग? एंड इफ ही या आस्क्स यू आल्सो हाउ लो, हाउ विल यू रेट योरसेल्फ? जब हाँ सामने वाली बात होती है वो अलग है, तो वो सामने वाला हाँ फ्रेंडशिप लैक कर रहा है। आपके पास हम्म 1000 फ्रेंड्स होंगे फेसबुक पे, एंड यू मस्ट बी वेरी हाँ कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट उसमें कितने हैं जिसको आप खुल के बोल सकते हो? या वो सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या वो सीन ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर से देख के हटा दिए। वो एक जो वन हाँ टू वन बॉन्ड होता है वो हम बना ही नहीं रहे, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है हमारे ट्रू पास फ्रेंड्स तो बहुत है। तो चीजें वही है ना, जो एक जो फिजिकल वाली चीजें होती है, सामने आमने सामने वाली बात, वो बॉन्ड की जरूरत है, जिसमें आप खुल के अपनी बातें कह पाओ। या ट्रू ट्रू very very true. I think that physical thing is actually more and more needed because this हम्म, work from home culture and abhi to हाँ, online classes and everything is happening ab what the person is behind the screen in front of so abhi there is a class of so many people how will a person understand एग्जैक्टली। बहुत yeah सारे बच्चे, इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, आफ्टर आई यूज्ड टू विजिट अ स्कूल,
while I was in doing my MD. So we used to go once a month to that school. तो बच्चे उसमें आते थे, वो बच्चे खुद बोलते थे कि मैम पहले तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, खड़े होके सब आंसर देना बोलना होता, अब मुझे पता नहीं क्यों एक हिचक सी होती है। मैं अचानक से 60 लोग के सामने गया, मुझे लगता है कि मैं सही से बोल पाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, जो भी होगा। एंड आई वाज नॉट लाइक दिस अर्लियर। सो दिस हैपेंड ड्यूरिंग दैट 1.5 years ऑफ लॉकडाउन। जब एक लॉकडाउन में आ गए सब, आप चार दीवारी में आ गए, वो वीडियो कॉल हो रहा है, हाँ अचानक से आपको जब सबके सामने, फिर जब खत्म हुआ सबको अचानक से 60 बच्चों के बीच में खड़ा कर दिया, अब वो बच्चे का हाँ कॉन्फिडेंस तो खत्म हो गया। आज हाँ आप जितना भी ऑनलाइन आप बुकिंग कर लो और हाँ लोकेशन ट्रैक कर लो, कितना हाँ कॉन्फिडेंट हो आप कि आप 1 to 1 पूछ के कि भैया ये रास्ता किधर पड़ता है, वो चीज़ उतनी नहीं हो या पा रही। या लोगों से डील करना, वो नहीं हो पा रहा। आप ऑनलाइन भले मास्टर हो, बट आप 1 to 1 कम्युनिकेशन में लैक करने लग रहे हो धीरे-धीरे। तो फिर वो 100% एक्सप्रेस इमोशंस ही एक्सप्रेस करना धीरे-धीरे आदमी छोड़ दे रहा है। सो सही दिस बात इज़ व्हाट हैज़ है। हैपेंड 100 हियर। 100%. So moving on, I would like to explore this topic of how like this physical health and how this mental health is related, because like in our society we see ki if person is like physically fine, so people don't actually talk about their mental health, because they say na ki physically to he's fine, we just met him. And with lot of depression documentaries I have seen, people say ki are like this person was there with us, but and when he goes for a diagnosis, this person is in depression from months and all. So one cannot actually understand ki how physical health and mental health is related. And next topic I want to understand also ki how does like a third person would know ki this guy is with help of understanding physical health ki this his mental health is getting deteriorated and it can help, because a lot of times one person does not know ki I need mental health because that person is in Yeah, deep I trauma or understand. something Totally like that. understand. Yeah. So I want to understand these both topics. Yeah. So physical and mental health, they are connected. In the Okay. sense that there are physical symptoms that happens in mental health conditions, and there Okay. are physical medical diseases that happen due to mental illnesses. So they are both sides related. मतलब अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो he or she is also prone for various physical illnesses, और बहुत सारे physical symptoms होते हैं जो होते हैं mental health conditions में, तो दोनों ही तरफ से। Okay. For Okay. example, अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सो ही इज इन कांस्टेंट स्ट्रेस वाले सिचुएशन में, जिसमें स्टेरॉइड्स जो होते हैं, जो आपका ये कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है। तो दिस Okay. persistent raised level of cortisol if you are under stress, anxiety, depression. तो अगर Okay. cortisol बढ़ा रहेगा, then you are prone to hypertension, diabetes, cardiac issues. तो Okay. लॉन्ग टर्म जिसको रहा है डिप्रेशन, उसमें देखा गया है डायबिटीज की रिस्क जनरल पॉपुलेशन से 4 गुनी ज्यादा होती है, 4 टाइम्स। सेम Oh. हैपेंस विद हाइपरटेंशन। स्ट्रोक के Okay. केसेस इनफैक्ट भी बड़े होते हैं इफ यू आर अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। Okay. आईबीएस जो कहते हैं ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें Yeah. देखा गया है कि ये स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो बहुत एंग्शियस टाइप के होते हैं, जल्दी घबरा जाना, कहीं जाना है घबरा गए हैं, एयरपोर्ट जाना है 2-3 घंटे पहले पहुंच गए हैं, कोई टास्क दे दिया गया पहले घबरा गए हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उनको Okay. आईबीएस की दिक्कत होना। मतलब पेट का दिक्कत, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द वगैरह, जिसमें रिपोर्ट्स में नहीं कुछ निकल के आता। तो ये एक Okay. चीज हो गई कि मतलब अगर आपको मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, तो ये मत सोचो कि आपका फिजिकल हेल्थ ठीक है तो सब चलेगा। तो Okay. आपको अगर ये सब चीजें और आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो, देन यू आर आल्सो मच मोर वल्नरेबल टू फिजिकल इलनेसेस, क्रोनिक Okay. फिजिकल इलनेसेस। एंड Okay. आल्सो व्हेन आई वाज सेइंग कि बहुत सारे फिजिकल सिम्पटम्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस में होते हैं, जैसे एंजाइटी। तो Yeah. एंजाइटी में हाथ कांपना, ठीक है, Yeah. धड़कन महसूस होना, यू फील पाल्पिटेशंस, यू फील Yeah. हेवीनेस इन चेस्ट। दैट इज व्हाई Okay. यू गो एंड कंसल्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट, और कहेगा हाँ वो कुछ नहीं है, रिपोर्ट सब नॉर्मल हाँ है, हाँ. ठीक है। और एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यू फील दैट चोकिंग सेंसेशन, you feel like you need to, you you are you get hunger for air, you have to gasp in, बहुत ज्यादा एक सांस खींचनी पड़े। You Hmm. constantly have headache, which we call most common is tension type headache, एक बैंड जैसा सेंसेशन, जैसे पूरा कस रहा हो, दब रहा हो। वो कहेगा हमें सर Okay. दर्द है, फिजिकल दिक्कत, लेकिन वो Okay. भी एक टेंशन टाइप हेडेक होता है, जो कांस्टेंट स्ट्रेस में कोई रहेगा तो वो दिक्कत हो सकती है। यू फील डिजी, यू फील हैवीनेस इन हेड, वो सब कुछ कैन बी एक्सप्लेन बाय एंजाइटी।
Okay. There is always disturbance, gastric disturbances, वो भी anxiety में हो सकता है. Okay. एंड यू ऑलवेज फील लेथार्जिक, हमेशा थका थका लगता है, ताकत ही नहीं है शरीर में. मैम हमेशा कहती है बहुत जल्दी थक जाती है. उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, वो मल्टीपल फिजिशियंस को दिखा रहे हैं. दैट कैन हाँ. बी एक्सप्लेन बाय डिप्रेशन. तो Okay. बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं इन मेंटल हेल्थ कंडीशंस, एंड फिजिकल Okay. इलनेसेस होती हैं ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ कंडीशंस. तो दिस इज हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड. Oh, really actually good to know. मुझे लगता था कि these two are very different and some things may cross here and there, but now I to get to know कि these things are like properly connected. Very interconnected, yeah. Okay. So I want to know ki, like in our country, like most people are actually not that, I would say, rich or not. They cannot afford this mental health treatment. So, so like how can like poor people? Because I think poor people will be more prone to this mental health issue than rich people. Because rich people can actually afford a lot of different things. Can go to psychiatry or can go to a psychologist, but poor people cannot because it's generally more costly. So like what are the ways in which like people who cannot afford these kind of treatments or go to therapy can actually go and get themselves treated? So if we talk about the social economic class, Yeah. there is no discrimination between the rich and the poor. Mental health conditions सब में बराबर है, but yes, affordability could be an issue. तो वो एक रीजन हो सकता है. अदरवाइज सभी प्रेवलेंट है. इनफैक्ट हमारा जो एक हायर क्लास सोसाइटी का जो एक लाइफ स्टाइल है वो ज्यादा वल्नरेबल है टू मेंटल हेल्थ कंडीशंस. अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो अगर साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द साइकेट्रिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, द एंड हाउ व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन, and so everything else. Also therapist की बात करें तो it happens in sessions weekly, once or twice, and per session also cost varies from 500 to maybe 1500 depending again upon the experience, the type of therapy and everything else. Yeah. So yes, and it's a long term, कभी 10-12 सेशन लग जाते हैं किसी किसी थेरेपी के लिए. So Yeah. this is what the cost of treatment is. But then if we talk about the government health setup, psychiatry has been made mandatory for all the medical colleges. There has to be a department for psychiatry. ये हमारे Okay. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का एक पार्ट है. सो आप किसी भी मेंटल मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो साइकेट्री डिपार्टमेंट वहाँ जरूर होगा. मेडिकल कॉलेज की फीस तो वही किसी के 1 रुपए किसी के 10 रुपए जैसे भी हो, इतनी ही होती है Okay. एक गवर्नमेंट मेडिकल Okay. कॉलेज की. इफ यू टॉक अबाउट and medicines also, if we talk about, there are government supply as well in the state run government hospitals. And also from Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana, there are psychiatric medications also available in there. So ये एक इशू नहीं होना चाहिए. Yeah. सो यस, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, चाहे आपके ये हो गए डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हॉस्पिटल हो गए, उसमें साइकेट्री के डॉक्टर्स बैठते हैं. maybe not every day, then once or twice a week, but they are posted there. So Okay. this can be a thing that can be yes utilized. Also mental health care act में इंश्योरेंस में भी पॉलिसी आ गई है कि there should not be any discrimination between physical and mental health conditions. तो mental health conditions को भी include कर लिया गया है इंश्योरेंस पॉलिसीज में. So this is also something that you can check with your insurance provider कि अभी है कि नहीं है, क्या क्या included है, क्या क्या नहीं है. In some insurances, obviously, substance use को नहीं किसी में लिया गया है कि it is due to alcohol or other substance use तो हमें नहीं मानेंगे, और mental retardation जो कि बचपन से उसको नहीं मानेंगे. बाकी डिप्रेशन हो गया, OCD हो गया, schizophrenia हो गया, there are included in the medical insurance Okay. company as well. Okay. So yeah. That's great to know. Actually did not know these kind of things, but that's Yeah. actually great to know कि there is actually like a psychiatry department. One does not see Yes, when they go yes, to there like are. a government college, but yeah, Hmm. it's a really good information. Okay, so moving on to next topic, I want to know like a role about mental health and your environment. So environment as in a physical space, not related to people. So how does this this so how does this change in environment can actually affect your mental health? Because we were talking about rich people and people who cannot afford. So definitely rich people can actually change their environment, uh, so they can actually and their mental health can be better. So and poor people can definitely not change their environment in a day or two. It will take a longer time. So how can this mental health and your outside environment is actually related?
That they're very closely related. How is your society? How is your surrounding? How are the conditions around? Definitely relate to your mental health condition. Like if the environment is very supportive, it's in your favor, things will be obviously going on smooth. But if there are issues that has just happened out of the blue, and you're not able to cope up with it, if there is death in a family, if there is a loss in a family, if there is a financial loss, if there is anything that is unfavorable in the environment, you can have adjustment issues. So it is very normal to have any kind of to adjustment problem to any environmental disturbances for initial 1 week or two. But if it gets prolonged, if it gets Yeah. more severe, leading to depressive symptoms, then it becomes a disorder. So this is Yeah. where the change in environment is required. And there are some things that can be changed, there are some things that cannot be. So Yeah. there are things that make you vulnerable to it. So if it's directly proportional to how it is directly related to how vulnerable you are. So this Yeah. is what we also call it as the stress diathesis model. So it is like diathesis is vulnerable. So if you have genetic vulnerability, or your childhood, or whatever we talked about the biopsychosocial model. So if you were vulnerable to it and you are exposed to any kind of stressful situation in your environment, you get to have land up in that mental health condition. So it is like stress diathesis model. So if you are Okay. vulnerable, you have much higher chance to get into that mental health condition when exposed to a stressful situation in the environment. So they're very Okay. closely related. Yeah. Okay. 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 So next question, I want to know, like it's a very pop culture question, but I want to know ki how does movies affect your mental health? Because I think in India, because I was reading somewhere ki in India we don't have this culture of reading books like as is there in West, because and this culture of not having like a good literature is actually just totally replaced by movies. So people just watch movies when they have free time. And I Yeah. think somehow if you watch abusive movies a lot, so Hmm. it definitely affects your mental health or how you behave in your environment. So I want to know ki in your practice how you have actually seen ki people's perception actually changing with movies and you have actually treated them. So like Yeah. that question. So yeah, so very correctly you said about the abusive, the movies depicting violence. It totally correlates with the externalizing behaviors. So Yeah. externalizing behaviors are like everyone has that anxiety somewhere inside. So Yeah. or something, some kind of psychological conflict going on. So few people, they internalize. So when they internalize, they land up into depression or anxiety. When they externalize, Okay. they land up into substance use, they land up into violence, they land up into um, what antisocial behavior, aggression, Okay. breaking things, abusive, aggressive behavior. So yes, the kind of movies you watch definitely, and that will not hamper, make a major change now, but it depends on the majorly in the adolescenthood, or the early age, or the age up to 25 or 30. So if you have been Okay. watching such kind of movies, definitely you will start learn to how to cope with that stressful situation in that way. If the Okay. movies depict violence, you also tend to pick up that kind of behavior to deal up with any stressful situation. True. If True. you so that kind of happens, yes. And if you watch, see, if we also watch any kind of motivational movies or something that depicts success, that also makes us motivated for few days Yeah. or a week, depends upon Yeah. uh, how keenly we have watched it, and what have we learned from it, and how we have been concentrating, and how we have been trying to reflect that in our lifestyle. तो ये बहुत फर्क पड़ता है। आप कोई भी Yeah. मोटिवेशनल मूवी देखते हो, आपको कई दिन तक उस चीज़ की समझ में आती है चीज़ें। आप कुछ True. ऐसी True. मूवीज़ देखते हो तो आपको रिलेशंस अच्छे से समझ में आते हैं, आप दूसरे को समझ Yeah. पाते हो एक अच्छे पर्सपेक्टिव से। आप Yeah. अग्रेशन की मूवीज़ देखते हो तो वो भी अंदर से गुस्सा आता है, और वो कहीं न कहीं वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तभी हम कहते हैं बच्चों को 100%. ध्यान देना चाहिए वो क्या देखते हैं। मैं हमेशा हाँ. कहती हूँ कि बच्चे आते मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, पेरेंट्स का यही होता है। हाँ. मोबाइल में हाँ. क्या देखते हैं वो भी तो देखो। वो नहीं हाँ. देख पाते कि चल रहा है। अब वो रैंडम स्क्रॉल करे, उसमें क्या-क्या दिखा रहा है। अब हमें इंस्टाग्राम खोलने या फेसबुक खोलें, वी जस्ट वॉच द रील्स, डिफरेंट काइंड्स हाँ. ऑफ रील्स विल हाँ. बी देयर। आप अगर सीरियल्स देख लो, एक
टीवी सीरियल्स जो आते हैं उसमें आप अलग ही चीज हो जाएगा। अब अगर बच्चा यंग एज से हाँ, वो चीजें देख रहा है तो उसका तो सेटअप सोचने का वैसे ही हो जाएगा ट्रू, कि ट्रू। फैमिली में ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कोई हाँ, आपस में हाँ, ऐसा भी कर सकता है। तो हाँ, बिकॉज दिस हैपेंस, हाँ, हम इस एज में चीजें अलग है, शायद हम थोड़ा बेटर समझ पाते हैं कि हाँ ये हाँ, मूवीज की बात है, बट अगर हम हुँ, यंगर एज की बात करें तो वो नहीं समझ पाएंगे चीजों को। हाँ, So we हाँ, need to understand that yes, that definitely affects our behavior, our personality, and we have to be yeah, very, careful to see what our child or our younger generation is watching. yeah, yeah. And I think in reels and all, though, what a child watches and what a parent watches is an entirely different thing, because the algorithm will change according to what you are actually scrolling and Yeah, in which yeah. reel you are तो pausing. अगर हमारा So ही you फोन will यूज never कर ले know बच्चा तो वो हमारे actually. तरीके की चीजें दिखाएंगी। वो तो नहीं Exactly, समझेगा कि हमने exactly. क्या फोन बच्चे को दिया हुआ है। बच्चा तो True, कुछ भी true, खोल के देख रहा है। तो true, यू हैव true. टू बी वेरी केयरफुल कि बच्चा क्या देख रहा है। या True, true. I want to know like a couple of movie recommendations if you watch movies that you think one should actually watch because they are a कम ही teaching in देखती हूँ mental मूवीज। health. आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू। सो Okay. बिकॉज पता नहीं शायद पढ़ाई में इतना हम लोग हो गए। अब मुझे है देयर आर सेट ऑफ मूवीज में भी मैं देख रही हूँ, बट देन यस दैट इज माय वीकनेस। आई टोटली एक्सेप्टेड कि मूवीज और लिटरेचर ये चीजों में हमें बढ़ना होगा, बट ऐसी पढ़ाई पढ़ ली कि कभी मेडिकल बुक्स के अलावा टाइम ही नहीं मिल पाया। डेफिनेटली देयर Okay. वर माय फ्रेंड्स जो कि करते थे, बट Yeah. शायद जो भी यस। सो या, सो आई एम नॉट द Okay. बेस्ट पर्सन, बट यस। It's okay. It's okay. It's okay. So I want to know touch about. So I want to touch next thing about mental health in relationships, because like you said ki you have a patients from 22 to 30 and a lot of them would have relationship problems and all, because this is the peak time of when you are going through relationships, when you will be getting married in our country. So this is the generally peak age. So can you just shed lights upon couple of cases that you have actually seen, like prevalent cases in relationships, and common myths and perceptions that you actually see in relationships? Yeah. So yes, there have been multiple cases of relationship issues that come up to me in OPD. और क्योंकि यही एज है, अगर डिप्रेशन में भी है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेसर की बात करो तो रिलेशनशिप ब्रेकअप इश्यूज ये आ रहे हैं, बहुत कॉमन। Yeah. सो देर आर वेरियस रीजंस फॉर इट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट इश्यूज में। सबसे ज्यादा जो हो रही है वो ट्रस्ट इश्यूज की प्रॉब्लम हो रही है। Okay. सो देर आर केसेस जो कि अभी मतलब दे आर एंगेज्ड एंड दे हैव मैरिज इन नाउ विंटर्स, कमिंग विंटर्स, बट वो कहीं Yeah. ना कहीं वो ट्रस्ट इश्यूज, वो बार बार वो चेक करना क्या है, किससे बात कर रहे हो, क्या है। सो दिस इज डिस्टर्बिंग द रिलेशनशिप। Yeah. कई बार एक्सपेक्टेशंस, भाई हमारा जो नेचर है हमें एक्सपेक्ट करना दूसरा भी उतना ही ओपन अप हो। मैं सब चीज बताता हूँ, वो मेरे से शेयर ही नहीं करते, बोलते ही नहीं है, Yeah. बोलना ही नहीं चाहते। पता नहीं, True. शायद मुझसे कनेक्टेड ही नहीं है। तो उसका क्या नेचर है, वो कभी नहीं किसी से बोला तो आज कैसे अचानक से बोलने लगेगा। ना, सही इट टेक्स बात है. टाइम, इट टेक्स टाइम Yeah. इन स्पेशली इन एन अरेंज मैरिज। इट टेक्स टाइम, तो Yeah. ये समझना। Yeah. उसके बाद जितना आप कर रहे हो उतना दूसरे से भी एक्सपेक्ट करना कि मैं तो हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, मैं सोचती हूँ वो मैसेज करे खुद से, वो कभी नहीं करते। तो इस चीज पे True. लड़ाई हो जाना। वो बोले True. मैंने, वो बिजी थे, बोले मैं बोल दी अच्छा खाली होके करना, बट देन ही डिड नॉट। फिर Yeah. वो पता चलो कहीं चले गए। तो ये सारी चीजें मतलब एक Yeah. एक्सपेक्टेशंस, ट्रस्ट, ये सब बहुत Yeah. मेजर इश्यूज हो रहे हैं। तो हमें समझना होगा, सी एवरीवन इज डिफरेंट। पहली बात ना, Yeah. सबकी Hmm. पर्सनैलिटी अलग होती है। हमको Hmm. पहले समझना है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। जब आप Hmm. दूसरे के शूज में जाके सोचने लगोगे तब आप चीजों को बेटर समझ पाओगे। तो True. इफ देयर इज अ फाइट, कभी कहते हैं ना एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। तो जब True. आप गुस्से में हो तो आप गुस्से में क्या होते हैं, दो लोग आपस में कोई झुकना नहीं चाहता। वो अपनी आपकी गलती निकाला, वो आपकी गलती निकाल रहे हो, एंड देन इट क्विकली एस्केलेट्स एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग सच वर्ड्स और सच लाइन्स व्हिच यू लेटर रिग्रेट और व्हिच True. मेक्स अ डेंट इन योर रिलेशनशिप। तो आपको True. समझना है कि व्हेन यू नीड टू स्टॉप, टेक अ ब्रेक, थोड़ी देर रुक जाओ, कह दो कि अच्छा ठीक है बाद में बात करते हैं, काम योरसेल्फ डाउन, एंड देन यू थिंक True. कि लड़ाई क्यों हुई। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हाँ सामने वाले की गलती थी, बट क्या कुछ हो सकता है ये भी रीजन रहा हो। ट्राई टू थिंक ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज। यार हो सकता है फोन नहीं उठाया हो, मे बी ही वाज डूइंग समथिंग एल्स, मे बी आई एम नॉट हियर, मतलब मैं तो साथ नहीं हूँ। कोई अगर रूम में आ जाएगा, कोई चार बात करेगा, तो मैं नहीं ना कह सकता कि नहीं तुम जाओ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का टाइम है। तो ये चीजें हाँ. समझो ना कि भाई Yeah. सामने Yeah. कोई, तो उसको कैसे मना कर सकते हो। ठीक, True. True. या वो अभी ऑफिस से आए हैं तो तुरंत आपको कॉल कर दें,
सबका हाँ, अलग-अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है, सबका अलग-अलग उस समय मन होता है, ठीक है? वही ट्रू, चीज़ें हैं ना कि किसी को फ़ोन में बात करके कितना रिलैक्सेशन मिलता हो, किसी को शायद एक बार आराम से लेट के शायद कुछ लगा के, कुछ टीवी में लगा के, शायद क्रिकेट लगा के अलग से मज़ा आता हो, कुछ अलग रिलैक्सेशन हाँ, मिलता हो, करेंगे कॉल बैक, बट प्लीज़ हैव या, पेशेंस। तो या, ये दोनों तरफ से ये चीज़ें हैं, समझना होगा ना, टू हैव योर पेशेंस। ऑल्सो यू शुड नॉट टेस्ट अदर इन द रिलेशनशिप कि अच्छा देखो, नहीं मैं नहीं करती हूँ, देखते हैं सामने से कब फ़ोन करता है, या मैं नहीं करूँगा, देखती हूँ वो कब करती है। व्हाई आर या, यू चैलेंजिंग, क्या फ़ायदा मिलेगा? और कुछ ट्रू, नहीं होगा, तो आप तो फिर रिलेशनशिप और खराब ही होगा। आपको है हाँ, तो आप बोल दो सामने से कि हाँ, मुझे मैं वेट कर रही हूँ, तुम आप जब भी फ्री हो ना, आप मेरे को कॉल कर लेना। या हाँ, फिर मैम मैं देखना चाहती थी, या मैं देखना चाहता था कि वो अब क्या करता है इस सिचुएशन में। वो मुझसे पूछता है कि मेरा मन खराब है कि नहीं? क्यों? अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, यू आल्सो हैव टू पुट एन इक्वल एफर्ट। क्यों ऐसा सिचुएशन करेक्ट करना कि भाई हम उसमें टेस्ट करके देखें कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। हाँ, तो चीज़ों को मतलब आप समझो, और यू गिव अदर द स्पेस एज़ वेल। ट्रू, हैव ट्रस्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स, आई एम सेइंग कि हाँ, चलो जो होगा, होगा। मतलब देख के छोड़ के देखो। इफ यू हाँ, ट्राई टू हर तरफ से एक एक स्क्रूटनी में रखा जाए, कवच में रखा जाए एक ऐसा, तो किसी को भी घुटन होने लगती है एक समय पे। तो ट्रू, स्पेस दो, वो बंदा या बंदी वापस आएगा। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा हाँ, समझना है कि हमें बहुत हाँ, दूसरे की पर्सपेक्टिव को, दूसरे के पर्सनैलिटी को, दूसरे के इमोशंस को एंटरटेन करना, समझना, रिस्पेक्ट करना, दिस इज़ व्हाट समहाउ वी आर लैकिंग, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रू, क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन आवर रिलेशनशिप्स, या। true. Like it's such a relatable thing that you have said. Like हुँ, I have literally noted all the points, and it's actually I see my friends, they talk about these things and this या। trust issues, this unrealistic expectation. Yeah, हुँ, this is हुँ, like हुँ, so हुँ। true, so true. Like या। uh, मतलब next हमारे thing up. पेरेंट्स भी हमारे रिलेशनशिप में बहुत कुछ, हम हर मोमेंट में उन्हें टेस्ट तो नहीं ना करते कि देखते अभी क्या करते, देखते क्या करते, तो हम हाँ, क्यों इसमें कर रहे हैं? आप अगर किसी true. को मान लियो तो बस मान लियो, आपको कोई चीज प्रॉब्लम है आप बोलो। आप वेट मत हाँ, करो कि वो आपसे कब क्वेश्चन करेंगे। वो देख के हाँ, आज पूछते हैं कि मुझे उस चीज का बुरा लगा था कि नहीं, अगर आपको है आप बोलो। आप हाँ, सामने वाला भी उतना समझ सके जितना आप समझते हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप लोग एकदम हाँ, सेम तो नहीं हो सकते। सो दिस इज exactly. व्हाट, या। Exactly. True. Next thing I want to talk about this mental health in older people because we see like what happens is ki in West and all, so there is like a proper institution like when you are old age, so you actually are taken or you can be admitted to old age, and but in India we don't have this kind of culture. And you see a lot of older people. I have seen in my relatives and in my nearby places like older या। people when they are like 70, 75, they are not treated well, and like physically they are deteriorating, mentally so I ट्रू, think they ट्रू। would be worse. या, So एग्जैक्टली। like a couple of cases if you can mention how older people can actually use internet to actually get their mental health little better, because with एग्जैक्टली। internet you can actually connect, and when you are old you actually feel more and more lonely, because now with work what happens is you are connected with the world, but when work goes away from your life you are not connected with the world. एग्जैक्टली, So एग्जैक्टली। how can older people actually get their mental health better? So it's, yes, the mental health condition, especially especially depression, is very common in older age. Okay. तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं, स्पेशली या तो एक होता है, एक हम कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम, जो कि लोगों को होता है आफ्टर दिस देयर 40s और 50s। एक Okay. एम्प्टीनेस सिंड्रोम, जैसे कि हम अभी थे, हमारे पास एक लाइफ में पर्पस था, हमारे बच्चे थे, उनको बड़ा किया, उन पे भरोसे हम रह रहे थे, उन पे हम पूरा ध्यान लगाए थे कि बच्चे का काम हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए। एंड जब आप सब कुछ कर लेता है बच्चा, अब शादी वादी कर लिया, अपनी लाइफ में बिजी हो गया, एंड नाउ दे आर जस्ट दे दे हैव नो पर्पस इन लाइफ। अभी लगता है तो एक हमारा घोंसला तो जो अचानक से खाली हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल एम्प्टीनेस सिंड्रोम। Okay. एंड नाउ दे फील अलोन, क्योंकि अब बच्चे की भी अपनी लाइफ होगी, उसकी अपनी जिम्मेदारी हो गई है। और स्पेशली जब अभी के कल्चर में, इफ यू टॉक अबाउट यू नो सब मेट्रोज में है, सब दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, तो पेरेंट्स तो पीछे ही रह गए हैं। तो वो एक हाँ. अकेलापन, एक पर्पस ही नहीं रह गया लाइफ में कि अब किसके लिए बनाएं, किसके लिए खाएं, हम ही दो लोग हैं, जो भी बना लिया खा लिया। True. टाइम नहीं मिल रहा है, चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्शंस खत्म हो रहे हैं। अगर वो उनके साथ शिफ्ट भी हो जाते हैं मेट्रोज में, दैट फ्लैट कल्चर इज नॉट सूटिंग देम।
क्योंकि ट्रू वो ट्रू जो लाइफ यहाँ थी, जो 4 कमरे में बगल-बगल घर में गए बात कर ली, वो वहाँ पे नहीं हो हाँ पा रहा है। तो देयर हाँ आल्सो दैट इज़ हैपनिंग। सही So हाँ these are multiple factors which are making them vulnerable to mental health conditions. और अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो हमारे तरह उनकी दिक्कतें नहीं होती कि घबराहट है, मैं उदासी है, वो शायद वो सोमैटिक कंप्लेंट्स, बॉडीली सिम्पटम्स की तरह आती हैं। दे विल कंप्लेन ओके ऑफ मल्टीपल बॉडी एक्स, ये भी दर्द है, वो भी दर्द है, वो भी दर्द है। कुछ रिपोर्ट में नहीं आएगा एंड दैट इज अल्टीमेटली डिप्रेशन। तो ओ उनके में प्रेजेंटेशन अलग होती है। दे ओके हैव मोस्टली बॉडी एक्स, लेथार्जिक, एंड आल्सो दे विल टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स कि अब जी के क्या ही फायदा, भगवान उठा ही ले जाते हैं, अब तो कुछ करने को ही नहीं है, कोई हाँ समझता ही नहीं है, कोई हाँ किससे ही बात करें, मेरे रहने ना रहने से क्या ही फर्क पड़ता है। दिस हाँ हैपेंस बिकॉज यस दे आर मेड टू फील लाइक दैट। या बात नहीं हो रही है, कनेक्शंस नहीं हो रहे हैं, हफ्ते-हफ्ते में फ़ोन नहीं आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन नहीं उठ रहा है क्योंकि हम बिज़ी हैं किसी मीटिंग में, हम कॉल बैक करना हाँ भूल जा रहे हैं बिकॉज़ हम अपनी लाइफ़ में ही बहुत बिज़ी हो गए हैं। सो दिस हाँ इज़ व्हाट अंदर-अंदर तो उन्हें यही लग रहा है ना कि अब बच्चे को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सब हाँ चीज़ें सेट हो गई हैं, तो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्रू फीलिंग। तो वी हैव टू ट्रू अंडरस्टैंड देम, वी हैव टू टॉक टू देम, वी हैव टू मेक देम कंफर्टेबल। और जो मैं कही ना कि मेरे पास एज जो आ रही है वो मोस्टली 20 टू 35, एक एज ग्रुप ये है और दूसरी एज हाँ ग्रुप है 60 प्लस वाली। बीच ओ वाली जनरेशन जो है हमारी पेरेंट्स वाली, हाँ दे आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट मेंटल हेल्थ कंडीशंस कुछ हो सकती है। जो ओल्ड या एज है वो भी नहीं समझ रही है, बट वो जो हाँ मिडिल एज है वो ये समझ रही है कि हमारे माँ बाप को बीमारी कुछ नहीं है, बस सोचते ज्यादा है, टेंशन लेते रहते हैं। हाँ हाँ वो उनको उठा के ले आ रहे हैं कि मेरी ओ अम्मा है, मामा मैम इनको समझाइए, बहुत फालतू सोचती रहती है, जबरदस्ती सोच सोच के अपना तबीयत खराब की है, कुछ नहीं मैम, बस टेंशन लेती हैं। हाँ उनके में उनको दिख रहा है और यूथ में, बच्चे में नहीं दिख रहा है, बच्चे को खुद हाँ अपने में दिखाई दे रहा है बिकॉज़ वी आर हाँ आवर जनरेशन इज़ मोर अवेयर। वो खुद से उठ हाँ के आ रही है, उस मिडल एज को इन्वॉल्व नहीं करी कि वो समझेंगे नहीं। मिडल एज अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है कि ये सब कुछ नहीं होता हाँ है, मैं तो हमेशा हाँ स्ट्रॉन्ग रहा हूँ, मुझे ये क्यों होगा? हाँ और अपनी पेरेंट्स को लेके उठा के लेके आ रही है। तो मे बी ओके आवर जनरेशन विल आइडेंटिफाई सच प्रॉब्लम्स इन आवर पेरेंट्स एज़ वेल, व्हिच दे विल हम्म नॉट अंडरस्टैंड। या तो ओल्ड एज में ये दिक्कत बहुत हो रही है एंड यस, ओल्ड एज होम आई हैव विजिटेड। I have या visited old age home. I have visited, this वृद्धाश्रम. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. If you talk to them like प्यार से 5 मिनट, like 90% of them they end up crying. इतने इमोशंस हैं, इतना कुछ है, और वही कि क्या ही कर हुआ करके या क्या ही हो पाया. And हम्म children, they are in well settled families. They are earning a lot. They are also donating a lot to that वृद्धाश्रम. पैसे हम्म से कोई कमी नहीं है, दवाई से कोई कमी नहीं है, हाँ बट वो समय नहीं है. और वो yeah समय this हमें चाहिए, care उन्हें attitude उन्हें is और not कुछ नहीं चाहिए. yeah यस, yeah यस. true true it's very sad to know but I think more पैसे से ज्यादा one needs to actually care about one's older people and I think समय देना बहुत yeah ज़रूरी है. समय देना so not taking much of your time last thing I want to know what changes one can actually do in their lifestyle dietary changes or exercises one can do to actually improve their mental health that I think you can give a general advice to adults or who are 20 years old or 30 years old in terms of dietary conditions because a lot of people eat very junk food and all and I think Yes. and you have said ki when your gut health is actually bad it really Hmm. affects your mental health also so want to Yes. know recommendations on that Yes. So yes, so if we talk about the lifestyle modifications that we can have so that we don't land up in mental health conditions. तो yeah ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए. पहला तो yes, our diet is very important. So we have hmm. to increase intake of water. We have to increase intake of green leafy vegetables, salad, and Hmm. fruits. Because see, Hmm. green leafy vegetables हो गया, healthy food हो गया, they also release serotonin. तो okay जो हम हैप्पी हार्मोन्स जो ढूंढ रहे हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं, वो हम नेचुरल सप्लाई में भी पा सकते हैं. सो hmm. यस, तो हमें ये सब बढ़ाना है. जंक फूड ऑब्वियसली वी हैव टू डिक्रीज. ठीक है, वो फर्क पड़ता है, ये सभी को हमको पता है. ऑल्सो दैट विल इंक्रीज योर वेट, दैट विल मेक यू एक आलस आ जाएगा, तो हम कुछ भी करेंगे नहीं, हम ऐसे बैठे रह जाएंगे. वेट बहुत चीजों को फर्क पड़ true जाता है. हम चीजों को सिखाएं कि आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, और वो बॉडी साथ ही नहीं देगी. सो हाँ इफ यू ईट true हेल्दी यू आल्सो फील, एक शरीर हल्का लगता है, कुछ भी कर सकते हो. तो hmm. डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Hmm. देन एक्सरसाइज, यस.
ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ कि जो इसको मानसिक बीमारी से बचना है, ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ जिसको सीवियर डिप्रेशन है तुम जाओ एक्सरसाइज करो या योगा करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन फॉर हाँ मॉडरेट डिप्रेशन दैट इज नॉट पॉसिबल until हम्म, unless medicine start to work and then you start feeling energy motivation, उससे पहले दवाइयों का एक्सरसाइज योगा करना पॉसिबल ही नहीं है। So you should never yeah force someone who is suffering, but yes, you can do exercise, yoga, meditation, whatever you are comfortable in, so that you don't have any mental health problems or just for your mental wellness. तो ये एक प्रोफाइल एक्सेस है कि हम ऐसी चीज में पढ़े ना, इस वजह से हमें करना चाहिए। ठीक है, अब मैं 20-25 minutes ऑफ ब्रिस्क वॉक इज इनफ। अगर आप रनिंग ना कर okay पाओ, बीट इन मॉर्निंग और इवनिंग 20-25 मिनट टहल लो तेज स्पीड में, यू स्वेट इट आउट। yeah स्वेटिंग से भी, एरोबिक एक्सरसाइजेस से भी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। इट इज अ रिसर्च प्रूवन फैक्ट। और एंडोर्फिन्स मेक अस हैप्पी, मेक अस मोटिवेटेड, मेक अस मोर इंटरेस्टेड इन वर्क। ठीक है, ये एक चीज हो गई। देन देर आर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट यू शुड डू प्रैक्टिस, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा, जिसको हम कहते हैं 4-4-6। इससे क्या होता है कि बॉडी में जो दो सिस्टम्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक इज okay व्हिच इंक्रीजेस इन एंजाइटी, जिसको कहते हैं रन वाला जो होता है ना, फियर रन yeah जो होता है, या fight एंड द and अदर flight इज फ्लाइट एंड फ्लाइट, एग्जैक्टली। yeah एंड द अदर इज पैरासिम्पैथेटिक व्हिच मेक्स यू काम डाउन। तो oh ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाती है, मेक्स यू काम oh डाउन। जो बहुत एंजाइटी okay वाले होते हैं, हमेशा घबराए, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, which goes by the rule 4-4-6. 4 seconds inhale slowly through your nose, 4-second hold, and then 6 seconds exhale very slowly through your mouth. So for okay example, it is like, so 6 seconds very slow you exhale, like you just, जैसे कहते हैं got it चाय कॉफी को फूकना, उतना धीमे yeah आराम yeah से। got it तो बहुत धीमे लो ये। दिस यू शुड प्रैक्टिस 5 times एक बार में, एंड 3 हाँ times a day। एक बार सुबह बेड से उठ के बेड पे बैठ के कर लिया, एक बार दिन भर हाँ में कभी कर लिया, एक बार रात में सोने से पहले बेड पे बैठ के कर लिया। So this is हाँ breathing exercise that you should do. hmm And apart from this, please give yourself around 30 minutes a day and do something that you love. जब आप ठीक हो, वो भी नहीं कहूंगी डिप्रेशन के पेशेंट से तो कुछ भी मन ही नहीं करेगा, वो हम आप हाँ जैसे अगर ठीक है तब करो। If you hmm like listening to music, if you like watching movies, if you like running, if you like gymming, if you like painting, if you like art and craft, if you like instrument playing, anything, please take out 30 minutes at least in a day for yourself. क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसी काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, ऑब्वियसली एंडोर्फिन सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो विच इज ऑल आवर बॉडी नीड्स टू कीप अस मोटिवेटेड, टू कीप अस हैप्पी। तो अपने आप को टाइम दो। दिस इज व्हाट। एंड आल्सो लास्ट थिंग जो हम अपने थॉट प्रोसेस में कर सकते हो, ट्राई टू पिक अप पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग अराउंड। सिर्फ चीजों में जो जो अच्छाइयां हो रही उसको खोजने की कोशिश करो। स्टॉप पिकिंग अप नेगेटिव थिंग्स कि ये खराब हुआ, ये खराब है, उसमें ये खराबी, आज मेरे साथ ये गंदा हुआ। चीजें लाइफ में क्या अच्छी है yeah उसके बारे में सोचो। true हैव अ hmm पॉजिटिव आउटलुक, दैट yeah डेफिनेटली अफेक्ट्स अ लॉट फॉर योर मेंटल वेलनेस। तो okay कुछ भी आपके amazing साथ खराब होता है, किसी पे कोई बुराई लग रही है, ये बंदा खराब है, तो उसकी अच्छाइयाँ सोचने की कोशिश करो। हाँ अपना कुछ नहीं जाता किसी के बारे में अच्छा सोच के, हाँ किसी के बारे में true बुरा सोच के सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। उसको तो पता भी नहीं चलेगा आप उसके बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो। हाँ अल्टीमेटली योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल so हेल्थ विल true बी अफेक्टेड। so true So so please true have a general positive outlook. Yes. amazing just like last advice is like a golden piece of advice literally writing it down so so we'll be ending it thank you Dr. Upasana Rai, it was like really nice talking to you. I think I learned so many new things and I think the audience would learn so many new things. You explained mental health and the role of your environment, mental health in older people, mental health and social media, like lot of topics. Really impressed by your knowledge, and I hope you actually treat a lot of other people, and with the way you are educating, you actually keep on teaching other people about mental health. Really thank you, and from being Thank you. curious with Yes. Yash, I would also like to really take a few more minutes just to appreciate you yeah for giving this space to the your channel as well, because mental health के लिए time निकालना, mental health के बारे में बोलना,
ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो जिसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। आप भी मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो विदाउट अ डिग्री, इस तरीके से। Yeah. Yeah. So please continue this, and I'm really proud of you for taking out this time for mental health and for inviting me here. So yes, Yeah. I'll be really very helpful अगर किसी को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो सके, and you're Hmm. doing marvelous. Thank you so much for inviting Yeah, me yeah, here. yeah. And if someone wants to reach you, where can they reach you for consultation or Yes, I'm something? available on Tracto. You can also search by my name, Dr. Upasana Rai, psychiatrist, and you'll get a link for my clinic as well Okay, for my Tracto account. Yes. okay. Amazing, amazing. Really, really, thank you, doctor. Thank you It so was much. really nice talking to you. Really, thank Thank you. you. Thank you.